fertilizers and pesticides, even what we use here in the farming, as well as we have engineering industry, we have chemical industry, we have fertilizer industry. There are many industries, even forensic science, where this analytical chemistry principles tools are very important. We have classical methods, we have some instrument, we have weight methods which are used here in analytical chemistry. The analysis depends upon how much quantity of the matter or substance which we are dealing in our daily routine life. So basically, we know it very well. So if we are dealing with a few quantity, with a few gram quantity of the substance sampling, then that is called, you can say here, micro semi analysis, semi micro analysis. That is what we can say, and where we are going to investigate the substances present in the given substance, given sample, given matter. So generally, we'll take a sample of the given substance, given matter. So sampling, that is in few grams or micrograms and all, that quantity will be taken for the analysis. Then analytical chemistry mainly deals with the two aspects. Number one is a qualitative aspect, and number two is a quantitative aspect of the matter. Quality refers to which elements are present in a given substance or given matter, and quantity refers to how much amount of that particular element is present or given element is present here in that matter or that substance. That is, you can say, qualitative or quantitative aspects, as well as we are dealing with organic substances as well as inorganic substances. दोनों substances के साथ हम लोग deal करते हैं, और उस आधार पर अगर हम देखते हैं तो different principles are used, different instruments are used, or even different methods are used in organic chemistry as well as in inorganic chemistry. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अलग होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अलग होते हैं, और उसके लिए अलग अलग टेस्ट और अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं. ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. उसके बाद डिस्कस किया था हमने कि whatever the experiment we perform for the analysis of organic compound or inorganic compound, whatever the data observations made through the experiment, that has to be put into the proper format of the data, proper to have the proper interpretation of the data. जो भी डेटा मिलता है उसका एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, और प्रॉपर इंटरप्रिटेशंस के लिए वो डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए. कल उसके बारे में मैं एग्जांपल लिया था, हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड का कई सारे एग्जांपल हमने दिए थे. और इसीलिए वी आर ऑलवेज डीलिंग और वी ऑलवेज काउंटर विद सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस और मैथमेटिकल मेथड्स, एंड दैट हैज टू बी नोन. तो सबसे पहले हमने देखा कि साइंटिफिक नोटेशन नाम की एक चीज कल हमने देखा, n into 10 raised to n, ये साइंटिफिक नोटेशन हमने कल देखा. और उसके अंदर देखा कि जनरली आंसर हैज टू बी प्रेजेंटेड हियर इन साइंटिफिक नोटेशन, एंड दैट कैपिटल n represent the two digits, and small n, that is the power of 10, represents the exponent, and that exponent may be a positive or that may be a negative, as like Avogadro's number 6.022 into 10 raised to 23. So 10 raised to 23 is a small n, which is the exponent, and 6.0022 is a capital N. बाकी 10 का पावर होता है, that may be in plus or that may be in minus. ये हमने उसके अंदर डिस्कस कर दिया. फिर ये जो साइंटिफिक नोटेशन है उसके अंदर एडिशंस क्या होते हैं, सब्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, उनके मल्टीप्लिकेशंस कैसे होते हैं, दैट इज आल्सो व्हाट वी आर सीइंग. ये भी हमने उसके अंदर डिस्कस कर दिया है. क्लियर विद दिस? then moving ahead, we also seen here you can say what is accuracy and what is precision. कल के लेक्चर में जो मेन टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था what is accuracy and what is precision over here. So accuracy means always for any of the experiment or for any of the observation there is a true value. एक ट्रू वैल्यू होता है, एक रियल वैल्यू होता है, एक ट्रू वैल्यू होता है, एंड नियरनेस टू दैट ट्रू वैल्यू इज नथिंग बट द एक्यूरेसी. नियरनेस टू दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी. वी हैव टू हैव अ मोर नियर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, बट जनरली we won't get that true value because there may be there may occur different types of errors, individual, instrumental, many errors that can have the possibility of different errors is there. So depending upon that, what we also know here, that these errors are again of two types. That is, you can say absolute error and relative error. कल हमने देखा. So absolute error क्या होता है, ये भी हमने देखा. That is observed value minus a true value is nothing but the absolute error. And relative error क्या होता है, वो भी हमने देखा. That is, you can say absolute error divided by the true value into 100. That is in percentage. That is the relative value. Relative error. Or if we want to have the more accurate readings, we should have the precision. We should take a precise readings. Precise matlab we are leading towards more and more accuracy. That is, you can say precision is the prerequisite for high level of accuracy. जितना precise reading होगा, जितना precise observation होगा, उतना accurate reading होने की chance ज्यादा है. And that's why we are dealing with this. इसलिए हम लोग उसके साथ deal करते हैं कि precision is very important. But precision is measured in terms of deviation.
how much we are deviated right from the true value. That is nothing but the deviation, and depend upon that the precision, or we have to have a more precise value. Or in order to obtain the precision, number of readings are taken, experiment is repeated, and number of readings are taken, and the mean of that is taken, and that will give a more precise answer. तो कल हमने देखा था कि अगर आपको 10.5 ml HCl लेना है, उसके अगर 3 रीडिंग लेते हैं हम लोग, तो 3 रीडिंग लेने के बाद आप ज्यादा करेक्ट आंसर ले सकते हैं, ज्यादा करेक्ट आंसर ले सकते हैं, दैट्स व्हाई 3 रीडिंग लिए जाते हैं. सो अगर हमें 10.5 चाहिए तो हम 10.4 ले सकते हैं, 10.6 ले सकते हैं, और हमारा वैल्यू इसके बीच में हो सकता है. 10.6 के आगे नहीं हो सकता, 10.4 के नीचे नहीं हो सकता. ये देखो तो प्लस माइनस 0.1, हाँ ना, 0.1 ये उसके अंदर का लीस्ट काउंट हमने कल डिस्कस किया था, वो उसके अंदर होता है, और उसके बीच में आपका वैल्यू होना चाहिए. दैट्स व्हाई in order to have the precision is expressed in terms of deviation. तो कल हमने deviation देखे, दो टाइप के deviation देखे, there is a absolute deviation as well as a relative deviation. तो absolute deviation क्या होता है? It is the modulus of difference of observed value minus mean of all the values precisely what we have taken. And there is a relative error, what we say. Relative error क्या होता है? ये भी हमने देखा, that is you can say that is absolute deviation divided by the mean of all the arithmetic precision value what we have taken into 100. So these are the two formulas. ये दो फॉर्मूला हमने कल डिस्कस किए थे उसके अंदर, और वही हमने उसके अंदर डिस्कस कर दिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और यहाँ तक हमने शायद कैलकुलेशन, हाँ सॉरी, इसके आगे और एक टॉपिक देखा था हमने, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना. तो आज भी हम लोग वापस उसी के साथ कंटिन्यू करने वाले. व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स? सो लेट्स मूव टू मोर विद सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, significant figures or significant values, that is what we have to discuss here. So कल मैंने देखा कि significant figures क्या होता है. See, if we have to have more accurate reading, or we have to take a precise reading, and at that time we need a least count. So what is the least count of depends upon the instrument what we have taken. More calibrated instrument, more least count instrument will give a more accurate reading, है ना. मोर एक्यूरेट मतलब कैसे उसका मतलब देखिए कि आप लोग, हम लोग नॉर्मली दूध तो घर में लेके आते हैं, और हम जाते हैं और 1 लीटर का दूध लेके आते हैं मान लो दुकान से, या घर में सीधा आता है. हमने कभी मेजर नहीं किया, और 1 लीटर का बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, 1 लीटर का बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है. उसके ऊपर अगर 1 mm भी लेवल उसका कम ज्यादा हुआ तो दूध का क्वांटिटी बहुत कम या बहुत ज्यादा हो सकता है. दैट मे हैपन विद दैट. बट अगर हम ऐसा करते हैं, मानो कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस में हम लोग ब्यूरेट, पिपेट, टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं. अगर हम लोग वही 1 लीटर मिल्क अगर ब्यूरेट से मेजर करते हैं, तो ब्यूरेट पे ml लेवल पे उसका कैलिब्रेशन होता है. तो मोर एक्यूरेट 1 लीटर लेने की चांसेस बहुत ज्यादा है ब्यूरेट के साथ, है ना. उससे भी छोटे देखेंगे तो पिपेट्स होते हैं, पिपेट से और एक्यूरेट आने की चांस, जितना छोटा कैलिब्रेशन वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उतना एक्यूरेसी की चांसेस ज्यादा होते हैं. एंड दैट बिकॉज़ दैट हैज द लीस्ट काउंट. मतलब 1 का काउंट हो सकता है, जो हमने बोला 10.5 के अंदर हम लोग क्या करें, 10.5, तो उसके अंदर 10.6 हो सकता है, 10.4 हो सकता है ना, जो कल हमने देखा था इसके अंदर. देखिए, सो हमारा मेन रीडिंग है 10.5, तो उसमें हम कितना लेते हैं, 10.4 भी पॉसिबल है, और 10.6, इसके बीच में हमारा वैल्यू होता है, दैट इज 10.5, और सबका इसके बीच में आएगा. इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 है, 0.1. दिस इज प्लस और माइनस, 0.1 इज प्लस और माइनस. मतलब अगर हम 10.6 की बात करें तो 10.5 के अंदर 0.1 ऐड करने के बाद 10.6 मिलेगा. मतलब इतना मैक्स हो सकता है, और उसमें से अगर माइनस 0.1 करेंगे इसमें से, तो 10.4 आएगा. सो दिस इज नथिंग बट द लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट होता है जो इंस्ट्रूमेंट के साथ भी होता है, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, वो कितने में आपको रीडिंग दे रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो चाहे हम लोग लीटर में यूज कर रहे हैं, या फिर ml में यूज कर रहे हैं, या हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में यूज कर रहे हैं, मतलब ml का है, सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें यूज कर रहे हैं, या और डेसी में यूज कर रहे हैं, लाइक दैट. तो ये छोटे 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 लेवल पे आ सकते हैं हम लोग, डिपेंड अपॉन दैट वी कैन हैव द लीस्ट काउंट. तो जितना लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होगा, उतना एक्यूरेट रीडिंग हमारा होगा, और इसीलिए उसे प्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल करते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स हम देते हैं. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब जैसे ये फिगर की बात करते हैं लोग इसके अंदर, तो इसके अंदर तीनों भी डिजिट्स ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर ऑलवेज कंप्राइजेस ऑफ whatever the data you are putting, whatever the result you are putting, whatever the measurement we are taking. हम चाहे रिजल्ट प्रेजेंट करें, हम चाहे मेजरमेंट प्रेजेंट करें, whatever is that has to be put into the significant figures. And significant figure is a combination of certain value with certainty and value with uncertainty. At least one value with uncertainty, ऐसा होता है, one digit with uncertainty, ऐसा होता है. So कोई भी significant figure के अंदर
कुछ वैल्यू ऐसे थे जो सर्टन होते, फिक्स होते हैं, सर्टन उतना आना ही आना, लाइक दैट। फिर उसके बाद आगे का एक डिजिट ऐसा होता है कि जो अनसर्टन होता है, वो थोड़ा सा प्लस माइनस आ सकता है ना। तो उसके अंदर देखिए 10.5 की हम बात करते हैं, तो 10.5 के अंदर डेसिमल के पहले का जो 10 फिगर है, दैट इज अ सर्टन, वो होना ही होना है। और उसके बाद का जो 0.5 है, 0.5, उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। किसी का 0.5 के बदले 0.6 आएगा, किसी का 0.5 के बदले 0.4 आएगा। सो इसके अंदर ये जो 5 फिगर है, इसके अंदर सर्टेनिटी नहीं है, ये अनसर्टन है, थोड़ा अलग आने के चांसेस है। लेकिन अगर किसी का वैल्यू 10 में ही अगर अनसर्टन हो जाता है, कोई 10 के बदले 9 लेगा तो 100% रॉन्ग आंसर, 10 के बदले 11 लेगा तो 100% रॉन्ग है। सो दैट्स व्हाई this is a significant figure. So significant figure always comprises of certainty, digits with certainty. Here are the two digits with which certainty, with the certainty, and here is the one digit, that is 5, which is with uncertainty. So this is called a significant figure. So science में generally आंसर जो प्रेजेंट किए जाते हैं इसी तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं, that is there should be some digits with certainty, वो उतने होने ही होने, or there should be single one or more digits that has to be with uncertainty. वो uncertainty के साथ होते हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत प्लस माइनस आ सकता है, इंडिविजुअल एरर हो सकता है या फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई that has to, अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए तो उतना अनसर्टेनिटी उसके अंदर होना ही होना, बिकॉज़ वी आर प्रेजेंटिंग मोर एंड मोर एक्यूरेटली, ठीक है ना। मतलब आपको बोला जाता है कि चलो आपको अभी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस मेजर करना है, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस मेजर करना है तो डिस्टेंस बहुत बड़ा है, 1 किलोमीटर के अंदर अगर आपका 1 फीट का प्रॉब्लम हो जाता है तो चल जाता है, क्योंकि 1 फीट अंदर बहुत बड़ा है, बहुत डिस्टेंस बहुत बड़ा है। आपको नोटबुक के ऊपर बोला जाता है कि आपको 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करना है। अभी 2 सेंटीमीटर के अंदर 1 फीट का गलती कैसे अलाउड होगा, बिकॉज़ 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, इसके अंदर तो 1 फीट का हो ही नहीं सकता। हाँ, उसके अंदर एमएम का हो सकता है, एक आध एमएम का चलेगा। आपको ऑलरेडी बोला जाता है कि 2 एमएम डिस्टेंस लेना है, 2 एमएम के अंदर आप कितना मिस्टेक कर सकते हैं, that has to be minimized. So in that sense you can see here. So when we are talking about the significant figure always comprises or consists of digits with certainty and one or more digits, one or two digits like that with the uncertainty. Generally one digit with uncertainty. This is what you can say significant figures. अभी significant figures आपने फिजिक्स में भी देखा हुआ है और स्कूल में भी आपने देखा है कि significant figures के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, है ना, कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल को हमें देखना पड़ता है कि हाउ वी कैन हैव दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उसके अंदर जानते हैं हम लोग कि अगर मेरे पास ऐसा है कि एक फिगर ऐसा आता है कि हियर 137.92 ऐसा फिगर है, ये फिगर है, ये पहला फिगर है। सो इसके अंदर देखिए ना, इसके अंदर कहीं जीरो है ही नहीं ना, इसके अंदर कहीं जीरो है नहीं। 137.92, all figures are like this. All are significant figures. So all non-zero figures are significant figures. All non-zero figures are significant. इसके अंदर कहीं कुछ जीरो नहीं है, तो जिस फिगर में कोई जीरो नहीं होता वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर माने जाते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि 12003.42 ऐसा फिगर है, ये फिगर लेते हैं 12003.42 ऐसा फिगर, यहाँ पे जीरोस आ चुके हैं, बट जीरो इस तरफ एक डिजिट है, इस तरफ भी डिजिट है, और इसके बीच में जीरो आ चुके हैं। तो जीरोस अगर किसी भी डिजिट के बीच में आ जाते हैं देन दे आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये पूरा फिगर सिग्निफिकेंट है बिकॉज़ जीरोस डिजिट्स के बीच में आ चुके हैं। ओके, जीरो अभी लेफ्ट वर्ड हो सकते हैं, जीरो राइट वर्ड हो सकते हैं, वही केस हो सकता है लाइक दिस। अभी यहाँ पे देखिए 0.004 ऐसा मैं लेता हूँ, 0.004 इस टाइप का वैल्यू आता है मेरा 0.004। ये जीरोस डिजिट के लेफ्ट वर्ड में, डिजिट के लेफ्ट वर्ड में, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉन सिग्निफिकेंट, है ना। आप आपके डैड को बोलते हो कि मुझे 0010 रुपया दे दो, 0010 रुपया मतलब 10 रुपया आपको चाहिए, सिंपल। सो पहले जो जीरो है उसका कोई मतलब नहीं है ना। 0010 ऐसा आपने कहा तो इसका मतलब आपके डैड आपको 10 ही रुपए दे देंगे, क्योंकि आपने 0010 बोला है और ही नोज 10 के आगे कुछ नहीं, मतलब 10 ही है आपका वैल्यू, सो वो सिग्निफिकेंट माना जाता है। तो लेफ्ट वर्ड के जो जीरोस होते हैं उन्हें नॉन सिग्निफिकेंट माना जाता है। अभी हम ये वैल्यू कैसा करते हैं, 400 पॉइंट समथिंग ऐसा करते हैं, दिस वैल्यू इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, ये जीरो सिग्निफिकेंट होता है बिकॉज़ राइट वर्ड के अंदर और डेसिमल के पहले है। तो इस तरीके से ये सिग्निफिकेंट फिगर माना है। जैसे कि आपने बैक को बोला 0010 रुपीस दे दो तो 10 दे देंगे, आपने बोला कि 1000 रुपीस दे दो तो 1000 हो गए, 1000 हो गए। 0010 10 होते हैं, 1000 10 होते हैं। देखिए जीरो का जस्ट पोजीशन बदला है ना, लेफ्ट वर्ड के बदले राइट वर्ड में अगर जीरो रखते हैं तो 1000 अमाउंट बनता है। अब डैड पूछेंगे क्यों चाहिए 1000, 10 रुपए तो ऐसे दे देंगे, लेकिन 1000 मांगेंगे तो पूछेंगे, बट सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं, वी आर यूजिंग इन डेली लाइफ। सो दीज आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी इसके अंदर कैलिब्रेशन क्या होता है हमारे इंस्ट्रूमेंट का,
हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर कोई आंसर लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर के सारे फिगर्स सिग्निफिकेंट होते हैं। सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन में कर देगा, दैट इज n into 10 raised to n, ये हमारा वैल्यू है। Okay, this indicates the digits and this indicates the exponent. Exponent may be plus और exponent may be minus. तो इस केस में ऑलमोस्ट सारे के सारे डिजिट्स क्या होते हैं उसके अंदर आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो these are the rules by which how we can have the significant figures. उसके बारे में और डिटेल में आप फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में आप डिस्कस करते हो और पढ़िएगा, दोनों जगह वो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ऐसा नहीं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आप पढ़ते हो तो यहाँ पे केमिस्ट्री में कुछ तो अलग होगा। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स सिमिलर वन बिकॉज इट्स अ साइंस, और साइंस में फिजिक्स में अलग है, केमिस्ट्री में अलग है। इट्स नेवर हैपेंस लाइक दैट। सो अगर आपने फिजिक्स का नॉलेज भी अप्लाई किया सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए तो इट्स वेलकम बिकॉज इट्स द सिमिलर वन। क्लियर विद दिस? सो दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हम कल से देख रहे हैं, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं और उसका रिजल्ट हमें पुट करना है, उसके वैल्यूज हमें पुट करने हैं, तो ये इस तरीके से हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और सिग्निफिकेंट फिगर लिखने का ये हमारा था तरीका था उसके अंदर का, हाउ वी कैन राइट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो दिस व्हाट वी आर क्लियर विद दिस। तो ये हमारा इसके अंदर आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। या नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड विद दिस। Next topic is nothing but you can say calculations with significant figures या फिर rounding off of the significant figures. Significant figures को rounding off करना है। अब ये भी आप अच्छी तरह जानते हो कि significant figures को किस तरीके से rounding off करना है। So जैसे कि अगर आपके पास 10.7 ये फिगर है, 10.7 फिगर को आपको rounding off करना है, तो पॉइंट के बाद this is the 7 which is greater than 5, greater than 5 है तो उसे नेक्स्ट इसमें उसको कन्वर्ट किया जाता है। मतलब 7 के बाद का नेक्स्ट डिजिट कौन सा? 8। तो दिस फिगर कैन बी रिटन एज 10.8। दिस इज कॉल्ड एज राउंडिंग ऑफ। 10.7 का हमने राउंडिंग ऑफ 10.8 कर दिया लाइक दिस, है ना? या फिर सॉरी ये नहीं, ये 10.7 के बाद यहाँ पे हम लोग 1 कर सकते हैं, मतलब हियर 11.0 कैन बी रिटन लाइक दिस। सॉरी सो हियर इन 10.7 हमारा फिगर था, से 10.7 हमारा फिगर था। सो पॉइंट के बाद यहाँ पे जो फिगर दिखता है ये 7 है, तो उसके लेफ्ट वर्ड का जो फिगर है उसे हम लोग 1 से इंक्रीज कर सकते हैं। सो 11.0 हम लोग लिख सकते हैं। अगर हमारा ये फिगर ऐसा था कि 10.3 था लाइक दिस, 10.3 था, तो ये जो है वो 3 है, स्मॉल है। ओके, सो ये या तो ये फिगर ऐसे ही रहेगा लाइक दिस, 10 पॉइंट ऐसे रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज़ दिस इज लेस देन 5 है, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, है ना? या फिर हमारे पास ऐसा फिगर देखिए कि 10.36 है, 10.36 है। इस फिगर के अंदर भी देखिए कि दिस इज द 6, तो 6 पहले वाला यूनिट में हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, तो 10.4 इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। मतलब दिस 3 कैन बी कन्वर्टेड, ये इस तरीके से राउंडिंग ऑफ है बिकॉज़ ये 6 था इसलिए। इसी फिगर में ऐसा होता है 10.34 होता है, 10.34 होता है, तो यू कैन राइट दिस फिगर एज 10.3 ओनली बिकॉज़ यहाँ पे जो ये 4 है, दिस इज स्मॉलर देन 5, स्मॉलर देन 5। सो अगर यहाँ का फिगर 5 और ग्रेटर देन 5 है तो उसको उसका लेफ्ट वर्ड जो नंबर होता है, लेफ्ट वर्ड जो डिजिट होता है वो 1 से बढ़ता है। ओके, और अगर स्मॉल है तो वैसा रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा लाइक दैट बिकॉज़ दिस वैल्यू इज लेस देन 5, सो इट विल रिमेन एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दिस इज यू कैन से राउंडिंग ऑफ मेथड उसे कहा जाता है। सो ये सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर राउंडिंग ऑफ मेथड यूज किया जाता है। अभी मेनली when we are dealing with the calculations in chemistry के अंदर कई सारे कैलकुलेशंस हमें करने हैं, और ये कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो उसके अंदर हमें ये राउंडिंग ऑफ मेथड यूज करना पड़ेगा, खास करके जेई और नीट के अंदर। जेई नीट के अंदर जितने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सारे मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स के अंदर राउंडिंग ऑफ मेथड आपको यूज करना है। सिंपल है, आप स्कूल से देखते आए हो कि राउंडिंग ऑफ किस तरीके से किया जाता है। तो जो फिगर हम देख रहे हैं, जो डिजिट देख रहे हैं, वो डिजिट 5 है, ग्रेटर देन 5 है, लेस देन 5 है, अकॉर्डिंगली लेफ्ट वर्ड का जो डिजिट होता है वो चेंज होगा, और उसी हिसाब से वो सिग्निफिकेंट वैल्यू यहाँ पे पुट किया जाएगा, फिगर वहां पे पुट किया जाएगा। दैट इज व्हाट वी कैन से राउंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर विद दिस? So that is what we can say. So these are some mathematical operations or calculations what we have seen here in the chapter. तो हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन देख रहे थे, जो नोटेशन देख रहे थे, वो यहाँ पे हो जाते हैं। Now again चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, which is very important. That is you can say molecular formula and empirical formula. So next important concept is molecular formula and empirical formula. Empirical formula. Okay. So there is a concept called as your molecular formula and called as your empirical formula. अभी molecular formula तो आप अच्छी तरह जानते हो,
मॉलिक्यूलर ये वर्ड भी आपने कई बार देखा हुआ है, तो आप अच्छी तरह जानते हो इसको कि व्हाट इज दिस मॉलिक्यूलर वर्ड, क्या होता है, ये आप अच्छी तरह उसको जानते हो, ठीक है ना। सो मॉलिक्यूलर वर्ड को आप अच्छी तरह जानते हो कि व्हाट इज दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वी हैव टू मोर डिस्कस व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलो लेट्स हैव एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आप बेंजीन को देखते हैं, बेंजीन, बेंजीन आप स्कूल लाइफ से देखते हो, बेंजीन C6H6 is a molecular formula of the benzene. Clear? बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है। उसी का अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं तो CH is the empirical formula of benzene. अब देखिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये टर्म आपके लिए नया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टर्म आपके लिए बहुत पुराना है, बहुत मतलब स्कूल 5th स्टैंडर्ड से हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख सकते हैं। हमारे पास HCl का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, हमारे पास H2SO का मॉलिक्यूलर मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। वी हैव सीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास फॉर डिफरेंट एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो इन दैट सेंस benzene is the substance whose molecular formula is C6 and H6 and whose empirical formula is CH, ठीक है। तो पहले देखते हैं व्हाट इज दिस एम्पिरिकल फार्मूला, व्हाट इज दिस एम्पिरिकल, व्हाट इज दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? देयर आर मेनी एग्जांपल्स। चलो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं तो HCl, इज सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं H2SO4, अमोनिया की बात करते हैं NH3, हम मीथेन की बात करते हैं CH4, हम ईथेन की बात करते हैं C2H6। all these are you can say molecular formulas। ये सारे मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये आप जानते हो, आपने देखे हुए है ना। H2SO4 हम स्कूल लाइफ से देख रहे हैं, NH3 अमोनिया हम देख रहे हैं, मीथेन देख रहे हैं, C2H6 देख रहे हैं, ये सारे मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो आप देखिए ना, जैसे आपको हाइड्रोजन क्लोराइड बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है, तो आपके सामने HCl आ जाता है, HCl आ जाता है। जैसे आपको सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2SO4 आता है। जैसे अमोनिया बोला जाता है NH3 आ जाता है। इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आपको बताता है कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। सो व्हिच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट? हाइड्रोजन, sulfur and oxygen, these 3 elements are present, and how much number of atoms of that elements are present, that is also presented। हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, like that। So molecular formula is a formula which gives actual number, ऑक्सीजन का कितना नंबर है? 4, हाइड्रोजन का कितना नंबर है? 2, सल्फर का नंबर कितना है? 1। So molecular formula gives the actual number of atoms of various element, कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन, isn't it? कितने कितने एटम्स है? 2, 1 और 4, like that। So this is what we can say। तो molecular formula is a formula which gives the actual number of atoms of various elements present in a molecule of compound। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो सकता है, अमोनिया का मॉलिक्यूल हो सकता है NH3, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल H2SO4 है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल CO2 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल CO2 प्रेजेंट दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड के 2 एलिमेंट आते हैं, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, ये 2 एलिमेंट आते हैं। कार्बन के एटम्स कितने आते हैं? तो 1 आता है। ऑक्सीजन के कितने एटम आते हैं? तो 2 आता है। तो कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और उनके कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ये बताने वाला जो पिक्चर होता है, ये बताने वाला जो फार्मूला होता है, उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ फार्मूला which gives actual number of atoms of various element present in a molecule of compound is called as you can say molecular formula। तो ये सारे molecular formula आप जानते हो, अच्छी तरह डेफिनेशन हमें याद रखना है। it gives actual number of atoms of various elements present in a molecule of compound is called as a molecular formula। actual number of atoms of various element, दो ही keywords है, actual number of atoms of various element, that's all, this is called as a molecular formula। what about the empirical formula? देखिए मैंने एग्जांपल दिया, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला C6H6 है, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला, और बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH है। वैसे किसी का भी निकाल सकते हैं हम लोग। HCl का एम्पिरिकल फार्मूला HCl ही है, H2SO का एम्पिरिकल फार्मूला H2SO4 ही है, अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला NH3 ही है, मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 ही है, ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला इज नॉट C2H6, ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला C3H3, सॉरी C1H3, ऐसा है। अब देखिए यहाँ पे ये एक ऐसा सब्सटेंस निकला और ये ऐसा दूसरा सब्सटेंस निकला कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट है, और ये 3 सब्सटेंस है, 4 सब्सटेंस ऐसे निकले जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सिमिलर है।
तो जरूरी नहीं कि इंपिरिकल फॉर्मूला हमेशा डिफरेंट ही हो. इंपिरिकल फॉर्मूला मे बी लाइक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मे नॉट बी लाइक इंपिरिकल फॉर्मूला. Molecular formula. So what is definition of empirical formula? Empirical formula is the ratio, the simplest ratio of atoms of various elements present in a molecule of compound is called as empirical formula. So empirical formula is the simplest ratio of atoms of various elements. Simplest ratio. अब देखिए बेंजीन के अंदर दो एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन. सी दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन. कार्बन के एटम कितने हैं 6, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 6, तो आएगा कितना 1:1. तो इधर क्या हुआ, CH क्या है, CH 1:1 ही है ना, 1:1 है. तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 1:1 है बेंजीन के अंदर. और ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आता है, दिस सिंपलेस्ट रेशियो इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फार्मूला. सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फार्मूला. समझ रहे हैं आप लोग? बेंजीन के अंदर कार्बन के एटम्स कितने हैं 6, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 6, तो 6/6 is 1:1, and that's why one carbon atom, one hydrogen atom. 1:1 is the ratio of carbon and hydrogen. This must be a empirical formula of benzene. The empirical formula is the simplest ratio of atoms of various elements. That is called an empirical formula. इसके अंदर देखिए ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलरेडी रेशियो क्या है 1:1. अभी 1 से नीचे कितना रेशियो करेंगे, 1 से नीचे नहीं हो सकता ना, रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो 1 ही हो सकता है. सो 1:1, 1:1. तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है. इसके केस में इसका रेशियो देखेंगे हम लोग तो कितना है 2:1:4 है. अब इसके अंदर एक सल्फर ऐसा है कि जिसका ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो 1 है, 1 से नीचे तो नहीं जा सकते. सो दैट्स व्हाई वो वैसे रखना पड़ता है. सो दैट्स व्हाई H2 सल्फ्यूरिक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर आता है. अमोनिया के केस में भी ये 1:3 है, तो इसमें अंदर ऑलरेडी 1 है. इसके अंदर 1:4 है, इसका ऑलरेडी 1 है. इसके अंदर देखिए 2:6 है. 2:6 मतलब 2/6 मतलब क्या होगा 1/3. सो 1/3 is CH3. समझ रहे हैं आप लोग? We have to make a simplest ratio of atoms of various elements present in a molecule of compound is called the empirical formula. समझ रहे हैं आप लोग? So we have two definitions. Number one definition is of molecular formula, और number two definition of empirical formula. Molecular formula क्या कहता है? Molecular formula states that it gives the actual number of atoms of various elements present in a molecule of compound is called as a molecular formula. There are many examples of molecular formula. What is empirical formula? Empirical formula is the simplest ratio of atoms of various elements present in a molecule of compound. किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होने सारे एटम्स का, सारे एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट रेशियो लेना है, और सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होता है. गॉट इट? सो ये दो हम लोग इसके अंदर मिल जाते हैं. दैट इज यू कैन से मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला. नाउ द थिंग इज दैट हाउ टू कैलकुलेट दिस एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब हमारे पास ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूले आ चुके हैं, इसके पीछे भी कुछ बेसिक साइंस है. वो कैसे है, किसने बताया, किसी न किसी साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया, और किस तरीके से कैलकुलेट किया, तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, कुछ थियरीज होती है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके आधार पर वो कैलकुलेट करके हमारे सामने आते हैं. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो हमें डिस्कस करना है. एक्चुअली एम्पिरिकल फार्मूला को समझाना है तो हमें सीधा न्यूमेरिकल के साथ ही चलना पड़ता है. एक न्यूमेरिकल देंगे तो उसके साथ बेस्ट होता है, बेटर होता है. लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं थ्योरेटिकली how to find out empirical formula. Empirical, how to find out? That is, you can say steps involved. Steps involved in finding or calculating the empirical formula. किसी भी सब्सटेंस का empirical formula किस तरीके से find out करना है, उसके अंदर कौन से steps involved है, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. So there are 4 to 5 stages. 4 to 5 stages वहां पे देखने हम लोग, और 4 to 5 stages के साथ हम लोग से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला. देखिए सबसे पहला आता है स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 आता है. स्टेप नंबर 1 में क्या किया जाएगा? देखिए आपको कोई तो एक कंपाउंड दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लाइक दैट, और उनका ये परसेंटेज, ऐसा आपको बताया जाएगा. और बताया कि बोलेंगे फिर उसके अंदर कि आपको एक उसके अंदर का एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, देखिए आपको वेट दिया जाएगा या तो परसेंटेज दिया जाएगा, जो भी है. अगर आपको परसेंटेज के फॉर्म में दिया जाता है कि हमारे पास एक सब्सटेंस था और उस सब्सटेंस के अंदर कार्बन इतना परसेंट प्रेजेंट है, उसके अंदर नाइट्रोजन इतना परसेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट प्रेजेंट है, तो उस सब्सटेंस का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है.
तो इसका मतलब हमें परसेंटेज को दिया हुआ है, सारे एलिमेंट का परसेंटेज दिया हुआ है। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि जितने सारे एलिमेंट्स हमें दिए हैं, सारे एलिमेंट्स के हमें परसेंटेज ऐड करने हैं। सो देखिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ओके, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्लस जो भी है इज इक्वल टू जो भी आएगा। आपको अगर 2 एलिमेंट्स दिए तो 2 एलिमेंट, 3 दिए तो 3, 4, जितने दिए 2, 3, 4 होते हैं नॉर्मली, उतने दिए जाते हैं किसी भी न्यूमेरिक के अंदर। आप अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देख लीजिएगा, देयर आर मेनी एग्जांपल्स गिवन इन बुक जिसके अंदर दिया जाता है। तो एक एक्स कंपाउंड है, जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन इतना परसेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट प्रेजेंट है और नाइट्रोजन इतना परसेंट प्रेजेंट है। तो हमें पहले स्टेप में क्या करना है, सारे परसेंटेज ऐड करना है। और इफ ऑल दैट परसेंटेज इज इक्वल टू 100 देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमारा टोटल बन जाता है। इफ इट इज नॉट इक्वल टू 100, इट इज वो 80 आ जाता है, 90 आ जाता है, तो रिमेनिंग इज ड्यू टू ऑक्सीजन। तो रिमेनिंग परसेंटेज इज ड्यू टू ऑक्सीजन। दिख लेना क्या, इफ द सम टोटल ऑफ ऑल परसेंटेज और ऑल given percentage of all the elements is equal to 100, then oxygen is absent. Or if this percentage is not equal to 100, then oxygen must be present. Oxygen उसके अंदर present होना ही होना है, ऐसा उसका मतलब होता है। So ये percentage if it is 100, then oxygen O2 is absent, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और if this is 80%, then 20% must be of O2. 20% किसका है, O2 का, that is ऑक्सीजन का होना चाहिए। 20% ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट है ना। जैसे कि आप 10th में मार्क्स लेके आए और मानो आपको 90% आए, तो घर में डैड बोलते हैं 10% किधर चले गए, है ना। भले ही आप उसके साथ सेटिस्फाइड हो या ना हो, मे बी, बट सवाल तो आता है और हमें तो चेक करना पड़ेगा कि फिर भी आप मिस्टेक, मतलब if I got the 90% out of 100%, then I have mistaken 10%. So when I have made mistakes, actually, we just find it out, and that is very important step. तो उसी तरीके से पहला स्टेप ये है कि find out all the percentage. If it is equal to 100, then need not to go ahead. If it is not equal to 100, then remaining is due to oxygen. Oxygen नहीं बताया जाता कि वो है उसके अंदर। Step number 2. Step number 2. दूसरे स्टेप में क्या करना है? दूसरे स्टेप में this percentage has to be converted into weight. Either volume. जनरली वेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो परसेंटेज है वेट में कन्वर्ट करना है। मानो आपको ऐसा दिया था कि 4.3% कार्बन इज देयर। कार्बन का परसेंटेज कितना था? 4.3%। तो परसेंट हमेशा 100 के साथ होता है ना। आप जब घर में जाके बोलते हो आई गॉट द 90%, दैट इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। उसी तरीके से कार्बन का परसेंटेज 4.3%, दैट मींस इट इज आउट ऑफ 100। तो 100 ग्राम के अंदर 4.3% है। इसका मतलब है इसका जो वेट होता है वो होता है 4.3 ग्राम। 4.3 ग्राम। तो जो भी परसेंटेज है, परसेंटेज को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। परसेंटेज को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ये सबका, सिर्फ कार्बन का नहीं, हाइड्रोजन का भी करेंगे, नाइट्रोजन का भी करेंगे। जो जो परसेंटेज है वो सब कर देंगे। मानो उसके अंदर हाइड्रोजन अगर 20% है तो 20 ग्राम होगा, नाइट्रोजन अगर 60% है तो 60 ग्राम होगा, सो ऑनवर्ड्स। ऑक्सीजन हमारा 20% है तो 20 ग्राम होगा। सो परसेंटेज हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्राम। दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप की अगर बात करते हैं, थर्ड स्टेप में वी हैव टू फाइंड आउट द मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है इस लाइन में? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। वेट ऑफ दैट एलिमेंट इनटू इट्स एटॉमिक मास, ये फार्मूला होता है। तो अभी देखिए ना, कार्बन के अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, मतलब सबके करने हैं हमें, जितने सारे एलिमेंट है सबके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को फार्मूला हमने सम बेसिक कांसेप्ट इन केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया था। आप में से बहुत सारे बच्चे थे जो सम बेसिक कांसेप्ट के लिए नहीं थे, बट उसके अंदर है। और आपने शायद 10 में भी नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला देखा था। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है, दैट इज यू कैन से n is equal to W by m, ऐसा फार्मूला। n is a number of moles। केमिस्ट्री में स्मॉल n ऑलवेज नंबर ऑफ मोल्स इंडिकेट करता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो वेट ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा वो फार्मूला है। किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय, किसी भी सब्सटेंस का वेट डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स। सब बेसिक कांसेप्ट में देखा है। तो मोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। हमें सारे सब्सटेंस को मोल में कन्वर्ट करना है, और ये मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऐसा किया, दैट इज जो वेट हमें आया, जैसे कि कार्बन का वेट कितना है 4.3 अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक वेट जानते हैं हम लोग 12 है ना। पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट दिए हुए हैं। इट्स अ वेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी एटम, ईच एंड एवरी एलिमेंट। सो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है सारे एलिमेंट्स को, और उसके लिए क्या करते हैं, the weight which is given here converted here divided by the atomic weight। atomic weight आपको दिया नहीं जाता है, अंदर होना चाहिए। कार्बन का atomic weight 12, तो 4.3 upon 12 ये इसका आएगा, that is number of moles of carbon। Number 4, simplest ratio। simplest ratio obtain करना है, that is number fourth step।
स्टेप नंबर 4 दैट इज वी हैव टू ऑब्टेन अ सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो क्या करना पड़ेगा? अभी हमारे पास एलिमेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, 3 एलिमेंट हमारे पास है। तो इसमें जिसका नंबर ऑफ मोल सबसे छोटा आएगा, जिसका नंबर ऑफ मोल सबसे छोटा आएगा, उसी से सबको डिवाइड करना है। सो कार्बन का देखना है तो मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल जिसके आएंगे उसमें। अगर मानो स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के आते हैं तो कार्बन को हाइड्रोजन को और नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से डिवाइड करना है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कार्बन का आता है तो कार्बन को इसको सबको कार्बन से डिवाइड करना है। सो ये जो स्टेप है थर्ड स्टेप में जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा उस वैल्यू से वापस उन्हीं सारे वैल्यू को डिवाइड करना है। दैट विल गिव द सिंपलेस्ट रेशियो। वो सिंपलेस्ट रेशियो देगा। सिंपलेस्ट रेशियो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। हाँ, फ्रैक्शन में आएगा तो उसे होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ मेथड हमें यूज करना पड़ेगा टू विल कन्वर्ट इनटू द राउंडिंग ऑफ होल नंबर में कन्वर्ट। मतलब जैसे कि हमारा आंसर अगर 4.7 आ जाता है तो विल टेक इट 5। हमारा अगर 4.3 आता है तो विल मेक इट 4। अभी देखा हमने राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है। सो विल हैव दिस राउंडिंग ऑफ मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। लास्ट में फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? विच एवर एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे यहाँ पे रखेंगे और जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो वैल्यू मानो यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 3 आता है, सो विल पुट दैट वैल्यूज हियर। विल राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट, and we'll write the number of atoms to the right suffix of that element, symbol of element. तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट रेशियो आया था, ये स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट रेशियो, वो राइट सफिक्स में एलिमेंट्स की लिखा जाता है ना। जैसे कि हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं? मीथेन का C2H6 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका? मीथेन का। तो C2H6 में कार्बन के राइट सफिक्स में 2 है, हाइड्रोजन के राइट सफिक्स में 6 है। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दिस सब्सटेंस, वो ये बताते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हम करते हैं, जितने एलिमेंट इसके अंदर दिए हुए सारे एलिमेंट सिंबल आएंगे और उस सिंबल के राइट सफिक्स में ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आया था उसके वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे, राउंडिंग ऑफ करके वो यहाँ पे रखेंगे। ये रहा आपका एम्पिरिकल फार्मूला। दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला। So this is how we find out the empirical formula for any of the substance. So which are the steps involved in this one? Number 1 step, whatever the percentage given for all the elements, add all these percentage, and if it is equal to 100, then oxygen is absent. Or if it is not equal to 100, less than 100, the remaining is due to oxygen. अगर हमारा 80 आता था तो 20% मतलब 20% किसके कारण है? ऑक्सीजन के कारण। तो यहाँ पे ऑक्सीजन सब जगह ऑक्सीजन आता था तो ऑक्सीजन का भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ते कि सब आता था। लाइक दैट। ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में we'll have to find out, we have to convert percentage into weight, that is in gram. The number थर्ड स्टेज में हमें उस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है। तो सारे सब्सटेंस का वेट उसके एटॉमिक उस सब्सटेंस के एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। कार्बन का एटॉमिक वेट था 12 तो यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है तो हाइड्रोजन को 1 से डिवाइड करेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 है तो उसको 14 से डिवाइड करेंगे। लाइक दैट। सो ये स्टेप में उससे डिवाइड करेंगे। Then we'll obtain the number of moles. फिर we'll find सबसे smallest value किसका है number of moles और उससे we'll obtain the simplest ratio. तो सारे number of moles को उससे हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे and we'll get the values, and these values will be rounded off to obtain the nearest whole number. वो obtain करने के लिए हम लोग rounding off करेंगे। तो जैसे कि 1.3 था तो 1 कर दिया मानो, 1.9 था तो 2 कर दिया, 3.2 था तो 3 कर दिया। Like that. This is rounding off, and then we'll write the symbol of elements, and whatever the number we get here, that will be like written to the right suffix to this symbol of elements, and that is the empirical formula of the compound. ये हमारा compound का empirical formula उसके अंदर आ जाता है। अभी there is a relation between empirical formula and molecular formula. किसी भी substance का अगर हमें molecular formula find out करना है तो we have one of the formula. Molecular formula is equal to R into empirical formula. ऐसा उसके अंदर यूज किया जाता है। ठीक है ना? So there is a relation between empirical formula and molecular formula. Okay, what is it? So there is one important formula, number 1, that is you can say molecular formula is equal to R into empirical formula. Empirical formula. ये आता है formula. So this formula. किसी भी सब्सटेंस का अगर molecular formula हमें find out करना है तो molecular formula is equal to R into empirical formula. Empirical formula अभी हमने डिवाइड किया था, अभी हमने डिराइव किया था। तो empirical formula यहाँ पे रख देंगे, R से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो we'll get the molecular formula. What is this R? R is a specific integer और R किस तरीके से फाइंड किया जाता है? R is equal to molecular formula mass upon empirical formula mass.
empirical formula. इससे R का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है. We can here मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, R into empirical फार्मूला करना पड़ेगा. तो empirical फार्मूला यहाँ पे है, R को फाइंड आउट करना पड़ेगा. R के लिए क्या कर रहे थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आपको दिया जाएगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेट करके यहाँ पे रख दीजिएगा. यहाँ पे empirical फार्मूला मास, हमने जो empirical फार्मूला फाइंड आउट किया था उसका मास यहाँ पे रख देंगे तो हमें R मिल जाएगा. R यहाँ पे रख देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा. सो दिस इज द रिलेशन व्हाट वी कैन से, ये सीधे फार्मूले लर्न कर सकते हैं, बाकी तो आपको इसके अंदर का सब कुछ दिया जाएगा. सो दिस इज द वे how we can calculate or we can find the molecular weight and empirical formula. So what we have seen in today's lecture is very important. That is, we have seen the concept of molecular formula and concept of empirical formula. Molecular formula is a formula which gives the actual number of atoms of various elements present in a molecule of compound. This is called a molecular formula. We know the molecular formula of number of substances. And empirical formula is simplest ratio of atoms of various elements present in a molecule of compound. Is called, you can say, empirical formula. How to find out the empirical formula? There are some steps involved in that. Number one, add all the percentage. If it is equal to 100, then oxygen is absent. If it is not equal to 100, oxygen is present. Remaining is due to oxygen. Number two, convert all percentage into weight, that is in gram. Number three, obtain the number of moles. So number of moles, how to obtain? Weight of substance, weight of that atom divided by its atomic weight. Next, obtain number of moles and smallest ratio by dividing all number of moles with the smallest number of moles, which is the simplest ratio. And then finally write the symbol of elements and write the values to the right suffix of that symbol of elements. That will give the empirical formula. Empirical formula will give the molecular formula. Molecular formula is equal to R into empirical formula, and R is nothing but molecular mass divided by empirical formula mass is the formula how we are going to calculate the R. Clear with this? That's all for today. Hope so you got it. See you tomorrow with the next topic and with all. Thank you very much. See you tomorrow.